मुझे नहीं लगता तुम सोच भी सकते हो कि कितने लोग करोड़ों डुबा देते हैं हर दिन स्टॉक मार्केट में। एंड मैं खुद कोशिश करना चाहता हूँ टू ट्राई एंड सी इफ वी कैन मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट और नॉट। Okay, so I'm planning to do this 1 week Forex Day Trading challenge. और by the way, जिन लोगों को नहीं पता कि Forex क्या होता है, one country tries to exchange their money for another country to make a profit, and they do that by guessing कि कौन सी currency जो है कल जाके will be more valuable. For example, dollar is always growing and growing and growing. That is why pairs like Euro USD are always typically falling. And ये जो transaction होती है between two countries, तुम उसी का हिस्सा बनकर profit कमा सकते हो। और मैं ये Forex Day Trading चैलेंज में कोशिश करूंगा टू कन्वर्ट माई 6-7,000 रुपीज इनटू मोर देन 1 लाख रुपीज इन प्योर प्रॉफिट्स। बट पहले बात करते हैं अबाउट मेकिंग अ डे ट्रेडिंग प्लान। तो ये है कुणाल एंड ही रिसेंटली अर्न्ड अ वेरी हैवी पे आउट। मतलब जितना तुम्हारे गली का वो IIT ने पूरे साल में नहीं कमा पाता होगा, उतना कुणाल ने कमाया इन जस्ट अ कपल ऑफ डेज। सो लेट्स हैव अ चैट विद हिम एंड सी व्हाट ही हैज फॉर अस। So I want to ask you, like, how much time did it actually take you to be consistently be profitable? It took me nearly about 3.5 years to at least get a grip over things. I was very good with my analysis. I used to get that dopamine rush when I was 18 years. I was like, okay, I analyzed this pair, it went in the right direction. But trading was a different game because now trading is just not mental. It requires a psychology too, and you have that fear of losing your money too. So what are like a couple of tips for people to get started into Forex? And what tips would you would give me to for this challenge per se? ये tips use करोगे तो in general to build a good strategy. So what happens is that, let's say I am a new trader now, okay? I don't know anything about it. So the more complicated the charts look like, the more it gives me the evidence to think that, okay, this might be something, right? I see 20 indicators on a chart, then I naturally tell my brain that, okay, the more complicated it is, the more worthy it would be because there is more information in there. So it's absolutely wrong. The cleaner the charts are, the better. A trader is relying on price action, just naked charts, the better. 1 or 2 indicators might work. The second thing I would like to mention is that stick to one mentor. Just have your faith in him and you should know that, okay, this guy who I'm learning from is actually making money. Okay, so I think I have a basic idea after speaking to Kunal कि एक trading plan कैसे develop करते हैं, and I'm going to work and research on my own trading plan and I'll see you in a couple of minutes. Okay guys, so I think I found my day trading plan and I'll just take you through it कि मैंने क्या क्या सोचा है और हम क्या strategy implement करने वाले हैं to make this challenge a success. Okay guys, तो पहली चीज है mindset. How does a billionaire or a hedge fund manager think about trading? Right, ये बहुत important concept है because बहुत लोग जो होते हैं they don't have an abundance mindset and उसी वजह से they over trade or over leverage and lose all of their money. Number 2, time. जैसे कि हमने discuss किया था London Open which starts typically after 12:30 PM और the New York Open which starts about 4:30-5:30 PM. हम लोग उसी टाइम पे ट्रेड करेंगे बिकॉज वहीं पे सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हमें मिलेंगे. स्क्रिप्ट, हम कौन सी स्क्रिप्ट या कौन से स्टॉक्स या कौन से फॉरेक्स पे ट्रेड करने वाला है. सो वी विल ट्राई एंड ट्रेड यूरो USD, GBP, JPY एंड US30 बिकॉज ये पेयर्स आई थिंक सबसे ज्यादा स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग वेरी सिंपल ट्रेड्स. टाइम फ्रेम क्या होगा, हम लोग HTF to LTF करेंगे विच इज हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड ट्रेड्स हम लेंगे 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट्स पे ताकि वी आर जस्ट इन एंड आउट वेरी क्विकली. रिस्क मैनेजमेंट, so we'll not take more than 0.5% या 1% risk depending on कि हमें कितनी probability लग रही है of that trade to be a success, right? But yeah, definitely 1% ज़्यादा हम कभी risk नहीं करने वाले. Let's talk about trade management, which is by far the most important part of the whole strategy. हम लोग implement करने वाले हैं set and forget. हम लोग 1:2 RR का trade लेंगे, जो भी हम लेंगे depending on the stop loss, and कोशिश करेंगे to stick to this with every single trade. कहीं पे हमें लगेगा कि ज़्यादा potential है trade के खींचने का, वहाँ पे हम उसे खींचेंगे, but otherwise in general 1:2 RR. So now it is time to reveal how we are planning to flip this money. So the way we are going to do it is by using prop firms. और इनका concept बहुत simple है. You give them a one-time fee and they will provide you with a trading account. तुम्हें 2 levels pass करने होंगे and once you pass those, you'll get the real account and you can keep up to 80-90% of the profits. And हाँ, because I know that this is going to be a demo account for starters, जो भी हम इस पे पैसे कमाएंगे, I'll match it up with real money if we actually make a profit for us to enjoy. So I think this is one of the
greatest opportunities. But definitely guys, if you're a beginner, don't try this, because if you don't have a system that कि चल पाएगा या तुम्हारा mindset develop नहीं है, then this can end up you losing a lot of your money and never retrieving it back. Alright guys, so here we are just going to go ahead and buy the prop firm account. सब चीजें setup करके रख लेते हैं so that we can get started day trading from tomorrow. Alright guys, तो हमारा account finally आ चुका है and we have just got the details for the challenge. I will set this up and then मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि how does the account look. हमने सबसे छोटा account ही लिया है for now, but it should be good and it should help us at least make some amount of money, because जैसे कि मैंने बताया आप सब लोगों को, the idea is to match it up with real money जितना भी हम कमाएंगे इस डेमो अकाउंट में. Alright guys, so today is day 1. हमने कल अकाउंट सेटअप कर लिया था जो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को. यहाँ पे दिस इज द अकाउंट. हमने ये वाला अकाउंट ले लिया था. हमारे पास $5,000 की लिमिट है. So $5,000 होता है अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी इन कैपिटल. हमने छोटा अकाउंट लिया शुरुआत करने के लिए एंड हम इसी से ट्रेड करेंगे. So जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, हम लोग पर ट्रेड रिस्क नहीं करेंगे मोर देन 0.5 to 1%. इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग एवरी ट्रेड विल बी रिस्किंग $25. तो देखते हैं कि अभी कैसा रिस्पॉन्स हमें मिलने वाला है फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डोंट बी प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स एंड इन ट्रेडिंग, बी रिएक्टिव. तो जो मार्केट बोलेगी या जो भी हमें ट्रेड सेटअप्स वो खुद आएंगे हमारे सामने, हम बस वो लेने वाले हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू एक्टिवली फाइंड ट्रेड्स. ओके, सो लेट्स सी अभी तक हमारे पास क्या हुआ है. तो मैंने एक ये वाली ट्रेड जो थी USD कैट पे आप देख सकते हो, तो ये ट्रेड है जो निकल के आई थी, राइट. एंड ये अभी आप देख सकते हो कि ये 2 आवर शायद हिट हो जाए. मैंने ली नहीं ऑब्वियसली, आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड्स, बट दिस इज वन सेटअप दैट हम ले सकते थे, राइट. अभी हम बाकी अपने पेयर्स देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से डिस्कस किए हैं. सो ऑब्वियसली यूरो USD एक पेयर है जो हमने सोचा है कि हम ले पाए या नहीं ले पाए, राइट. अभी तो ये पूरा बस रेंज हो रहा है एंड आई डोंट नो कि इसमें क्लियर कट हमें ट्रेड मिलेगा या नहीं. ऑब्वियसली जो मेरा फेवरेट पेयर है, द पेयर व्हिच आई वांट टू ट्रेड पर्सनली इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली GBP JPY. आज मंडे है तो टिपिकली मंडे को मैंने देखा है कि स्लो डे होता है, ट्रेड्स फॉर्म हुई नहीं होती है एंड इसलिए द मार्केट इटसेल्फ इज वेरी वेरी स्लो, राइट. सो अभी हम वेट करेंगे, अगर कुछ ब्रेकडाउन हमें मिला तो ब्रेकडाउन से हम ट्रेड कर लेंगे. यहाँ पे भी कोई ब्रेकडाउन मिला तो वी विल ट्रेड अ ब्रेकडाउन फ्रॉम हियर. मेन चीज ये कि हमें बस ये जो इंपॉर्टेंट जोन्स है बस उधर से ट्रेड करना है एंड विल नॉट टेक एनी अदर ट्रेड. सो व्हाट I'll do is I'll keep you guys updated and मैं आपको बताऊंगा जब कोई भी ट्रेड मिलती है whenever I'm going to punch in a trade and then we'll see कि कैसे रिजल्ट्स होते हैं नहीं होते. So guys, GBP JPY just had a long term breakdown and वो ये अगर ये वापस इधर आ जाता है then we can go ahead once it touches this line and show strength, then we can go ahead and take a trade right up to here. So let's see how it goes. I'll keep you updated. Okay guys, so we took 2 trades. एक हमने लिया है Euro USD में, which is sell trade, so it broke this trend line on the 5 minutes, so I'm hoping that it goes down. Same with GJ में हमने जैसे ही इसने break किया, we wait for a retouch and obviously here we have the take profit हमने यहाँ पे रखे, थोड़ा safe है but it should be good. So let's see what happens. So something very unfortunate has happened. मैंने जो ट्रेड लगाई थी, मैंने एक्चुअली इनिशियली मेरा टारगेट था यहाँ का which it hit, but I got a little bit greedy and इसका जो टारगेट था टेक प्रॉफिट थोड़ा ऊपर रख गया. So जो हमारा गोल था फिटिंग about 1.5 RR which was met, didn't get hit. Euro USD again मैंने ट्रेड लगा के तो छोड़ दी थी, but we haven't seen a strong move. So let's see what happens and I'll keep you guys posted. Okay guys, so something really unfortunate happened. हमने हमारी 2 ट्रेड चल रही थी, एक GJ पे और एक Euro USD पे. हमने GBP JPY वाली ट्रेड बहुत जल्दी क्लोज कर दी and we only had a $25 का प्रॉफिट. आई थिंक अगर ये अभी ट्रेड रनिंग होती तो वी वुड हैव इजीली क्रॉस 1.5%. यूरो USD की ट्रेड हिट अ SL. हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ये SL हिट हो गया. बट दैट इज इट फॉर डे 1. So guys, welcome officially to day 2 of the Forex Day Trading Challenge. कल हमने गलतियां की. We made couple of mistakes. Number 1, हमने ओवर ट्रेड किया. We didn't stick to only 1 trade a day. Second चीज, we didn't follow our trading plan. हमारा प्लान था कि हम लोग फिक्स 1:2 RR पे चलेंगे. We didn't follow that. I closed the trade early, which resulted in us having a break-even day. हमें एक ट्रेड पे प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे लॉस हुआ, so it negated and completely zero. But I'm not going to make that same mistake which I made yesterday. That is the only key. So I've taken a trade now. I just punched in a couple of minutes ago. ये GBP JPY पे मैंने ट्रेड लिया है and it is flowing out beautifully well. And I'll show you on the screen हमने क्यों ये ट्रेड ली and how it's going. Okay guys, so हमने देखा तो 12:30 हमारा प्लान होता है कि हम लोग
12:30 के बाद ट्रेड लेंगे। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि हमारा कल की एक बार मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। सो बेसिकली वी सॉ दैट कल हमारा बुलिश ट्रेड गया था, देन इट केम बैक एंड इट हैज जस्ट बीन रेंजिंग है ना उस टाइम से। मैंने क्या देखा कि इस जगह पे इट हैड स्टूड पहले भी एंड अगेन इट स्टॉप्ड इन द सेम जोन। एंड वन मोर थिंग व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच वाज फॉर्मिंग वाज लाइक अ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हमारा बन रहा था व्हिच इज बेसिकली अ वेरी फेमस पैटर्न इन ट्रेडिंग एंड उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज फेयरली डिसेंट अगर आप हेड एंड शोल्डर्स लेते हो। तो ये हेड एंड शोल्डर्स एक पैटर्न सा बन रहा था एंड व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट टुक अ ट्रेड बेस्ड ऑन दिस कि इसका जब ब्रेक डाउन होगा तो विल टेक अ ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे हमें दिखा कि ऑब्वियसली यहाँ से रिजेक्शन मिला था, अगेन इट कुडंट मेक अ हायर हाई। यहाँ पे हमें ब्रेक मिला ऑफ कैंडल, जैसे ही ब्रेक हमें मिला आई एंटर्ड द ट्रेड 1:2 RR जो हमारा फिक्स प्लान है वो वाला मैंने लिया है 1:2.15 लिया बिकॉज इसमें ना एज यू गाइस कैन सी थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है राइट। जहाँ पे आप एंट्री करते हो उसमें 2-3 पिप्स का ऊपर नीचे होता है। सो आई डिडंट टेक इट एट द एग्जैक्ट मोमेंट, मैंने 1:2 RR का इसमें लगा दिया ट्रेड एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। आई थिंक इट शुड हिट बट अगेन नो ओवर ट्रेडिंग नथिंग, लेट्स सी हाउ इट गोज। कल का जैसे मैंने बताया आप लोगों को आई ओवर ट्रेडेड, एक ट्रेड पे आई मेड $23 का प्रॉफिट विच इज जीजे एंड वहीं पे यूरो यूएसडी हमने वो सारे गवा दिए। सो वी आर एक्चुअली एट $2 का लॉस बट या आई थिंक इट साउंड्स गुड एंड लेट्स सी कि हमारा कल कैसा आता है इसमें। दिस इज गुड, आई थिंक दिस इज गोइंग गुड। मुझे लगता है कि इट विल हिट बिकॉज दीज एरियाज आर लाइक मैग्नेट्स, इट शुड कम एंड हिट आवर टेक प्रॉफिट, क्या पता अभी स्क्रीन पे हो जाए। सो लेट्स सी। सो हियर वी गो गाइस, फाइनली वी हैव हिट आवर टेक प्रॉफिट 1:2 RR का हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है। सो गाइस दिस इज द पावर ऑफ फॉलोइंग अ प्रोसेस। वी हैव हिट आवर टेक प्रॉफिट 1:2 RR का हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो चुका है एंड one pair, one time zone and obviously we have followed our plan basically. I think if we just continue this challenge should be a success, so I'm excited to see how tomorrow plays out. Alright guys, so a couple of disastrous things have happened. We have taken 2 losses today and second loss की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी but I think I jumped into the trade too quickly without even analyzing and not following my plan. So let's talk about it कि क्या हुआ exactly and how we could have avoided it, because there was one trade that if I would have just taken it, we would be heavily into profits. Okay, so let's discuss that and let me take you to the charts. Okay, so let's talk about what happened in the morning. तो हमारा प्लान है to take trades at 12:30 के बाद राइट। सो हमने क्या किया, आई सॉ दिस ह्यूज मूवमेंट व्हिच केम इन आफ्टर 11:30, मे बी कोई न्यूज इवेंट होगा जो भी होगा, इट स्टार्टेड ट्रिकलिंग डाउन एंड राइट अबाउट हियर हम लोग बहुत अच्छे से अपना प्लान जो थे वो फॉलो कर लेते। आई वाज फॉलोइंग माय प्लान टू अ टी। पहले ब्रेकआउट पे मैं कभी नहीं लेता, सो आई डिडंट टेक आउट माय आई डिडंट टेक अ ट्रेड ऑन द फर्स्ट ब्रेकआउट। आई वेटेड आई सॉ दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकिंग राइट अराउंड हियर। हम लोग ये ट्रेड ले सकते थे बट आई वाज जस्ट लाइक इन टू थॉट्स कि यार ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आई डिडंट टेक दिस ट्रेड। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा के छोड़ देता, इफ आई वुड हैव टेकन द रिस्क ऑफ दिस एंड हमारा जो प्लान है 1:2 RR वो जो है वो अभी तक हिट हो चुका होता। बट इंस्टेड सो दिस ट्रेड वी मिस्ड, आई डिडंट टेक दिस। सो व्हाट आई डिड वाज आई क्विकली चेंज माय चार्ट्स एंड आई वेंट टू दिस यूरो यूएसडी में मैं गया एंड मैंने देखा अगेन दिस वाज लाइक टू क्विक। मैंने फोर्स की ट्रेड। आई सॉ दैट ये वाला पूरा नीचे आया था, दिस अगेन वेंट डाउन एंड राइट अबाउट एट अराउंड 1 o'clock I saw this thing happening. Okay, now वैसे तो from a fundamental perspective nothing is wrong here. यहाँ पे एक support zone है, support zone से यहाँ पे उसने engulfing candle बनाई and this is actually a valid trade. इसमें कुछ गलत नहीं है but still like I had a gut instinct that this will not play out but I still punched this trade. ये भी शायद 2 hour hit कर जाता, मोस्टली तो नहीं करता राइट एंड देन इट जस्ट वेंट एंड शॉट स्ट्रेट अप इनटू अ लॉस राइट। वो ये वाला ट्रेड था जो यूरो यूएसडी वाला हमने लिया। देन व्हाट आई डिड वाज आई अगेन केम इनटू जीजे इमोशनली हर्ट। आई थॉट कि यार ये तो हो गया, अभी कोई नहीं, दूसरी ट्रेड ले लेते हैं जल्दी से, लेट्स ट्राई रिकवर द प्रॉफिट्स व्हिच इज द बिगेस्ट मिस्टेक। नेवर ट्राई रिकवर योर प्रॉफिट्स ऑन द सेम डे। हमारा रूल था ऑफ टेकिंग वन ट्रेड अ डे व्हिच वी डिडंट फॉलो व्हिच इज बैड ऑन माय पार्ट। हमने दूसरा ट्रेड लिया अगेन हियर वी केम, देयर वाज आई थॉट कि ओके यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा ऐसे, व्हिच आई न्यू इन माय हार्ट कि नहीं होता। दीज डिफरेंट जोन्स आर लाइक मैग्नेट्स, सो वो टिपिकली पूरा रेंज होके जाता है। आई जस्ट टुक अ सेल ट्रेड हियर एंड अगेन एज सून एज आई punched in a trade right about here it hit my loss right. So that has been my trades today. हम लोग अभी हमारा account is sitting at -1% which is okay but I know I could have avoided this. हमारे पिछले 2 दिन की मेहनत to go up 1% we have gone down -1%, so हमने 2% lose कर दिए in a single day which is not good and this could have easily been avoided right. So yeah I think for day 3 this was pretty bad but हम लोग क्या करेंगे but this I will take this thing as an opportunity to learn from my mistakes right. I think a couple of things are clear. I only have to take trade on one pair which is GJ, उसी को
फॉलो करेंगे, जब हमारा प्राइस एक्शन होगा, जैसे हमें एंट्री मिलेगी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, एंड दैट शुड बी इट, राइट? सो आई विल सी यू ऑन डे 4 व्हिच इज टुमारो, एंड आई विल जस्ट गेट बैक टू स्टार्टिंग. सो गाइज, मैंने 2 दिन से रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज आई वॉज एक्चुअली एम्बैरेस्ड टू टेल यू गाइज व्हाट हैपेंड. परसों हमने 2 ट्रेड्स ली, एंड क्योंकि मैं सोच रहा था कि हम थोड़े जल्दी प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करते हैं, आई डिडंट फॉलो माय रिस्क मैनेजमेंट प्लान एंड वी एंडेड अप टेकिंग 2 बिग मेजर लॉसेस, एंड उसकी वजह से हमारा अकाउंट ऑलमोस्ट -5% गिर गया. सो आई थॉट कि यार क्या फायदा दिखाने का, आई थॉट आई ऑलमोस्ट लॉस्ट द अकाउंट. बट हैविंग सेड दैट, वी नीड टू ऑलवेज फॉलो आवर स्ट्रैटेजी, राइट? प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, हमने वही फॉलो किया. बट कल हमने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, सो वी रिकवर्ड, सो दैट trade went into profit and we recovered some of that money back. I remember what my friend said about taking losses. So बात करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या trades ली हैं, क्या क्या गलतियाँ की हमने. So this is the day where we took 2 losses. हमने यहाँ पे पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था कि this is going to be like ये हमने एक 4 hour पे हमने टाइम फ्रेम बनाया, एंड मुझे लगा कि जब इसने ये ब्रेक डाउन किया, will come down and end up going into sells. It did that. It did do that eventually, but not at the time we took the trade. मैंने अपना प्लान फॉलो किया, मैंने ट्रेड ली 12:30 के बाद, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड ली एंड हमने रिस्क ज़्यादा ले रखा था, हमारा रिस्क मैनेजमेंट वॉज नॉट प्रॉपर. मैंने स्टॉप लॉस भी आई वुड से ठीक जगह पे लगाया था, बट इट जस्ट वेंट डाउन एंड स्ट्रेट राइट इनटू आवर स्टॉप लॉस. देन अगेन यू कैन सी मैंने उसके थोड़ी देर बाद ही एक बाय ट्रेड ले ली. अगेन दिस वाज वेरी स्टूपिड ऑफ मी. हमने वैसे भी, हमारा रूल है टू ओनली टेक 1 ट्रेड अ डे, बट वी स्टिल टुक अ बाय ट्रेड. ये गया ऊपर, आई थॉट कि ओके एटलीस्ट दिस विल गो इनटू प्रॉफिट, ऑल्दो आई न्यू दैट इट्स नॉट प्रॉपर, एंड देन अगेन इट वेंट इनटू द लॉसेस. एज यू गाइस कैन सी, हमने उस दिन ही, इन दैट वन डे विच इज यहाँ पे जो हमारा 13 दिखा रहा है, सॉरी 14th, राइट? सो 14th को हमारा पहला ट्रेड था -1% एंड दूसरा ट्रेड था ऑलमोस्ट -2%. सो वी लॉस्ट ऑलमोस्ट 3% इन वन सिंगल डे, विच वॉज वेरी स्टूपिड. बट थैंकफुली हमने फिर जो ट्रेड ली उसके अगले दिन, which was here, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली 12:30 के बाद, and then it just went into my take profit. We recovered at least about 1%. But still guys, always follow your plan. I think सबसे important बात ये है कि सबसे important बात ये है कि just follow your plan. अगर आप risk management follow करोगे तो ये जो मेरा loss होता, this would have only been about 2%, right? And हम लोग 1% वैसे भी recover कर लेते, तो हमारा इतना कोई major significant loss नहीं होता, right? So guys, again, follow the plan, follow the strategy, and let's see हमारे challenge में शायद बस 2 या 3 बचे हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर. देखते हैं कि हम लोग कैसे उसको टैकल करेंगे. मैं फॉलो करूंगा प्लान, जो भी होगा वो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा. सो लेट्स सी. ओके गाइज, सो फाइनली आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज खत्म हो रहा है. मैंने पिछले 1-2 दिन फिल्म नहीं किया बिकॉज आई वॉज रियली कंसर्न्ड अबाउट कि हमारा अकाउंट कितना गिर चुका था. हम लोग ऑलमोस्ट अपना अकाउंट लूज करने वाले थे, तो मैंने सोचा आई जस्ट फोकस ऑन ट्रेडिंग एंड ब्रिंगिंग द अकाउंट बैक, एंड वी हैड सम रोड ब्लॉक्स. सो बेसिकली वी हैड सम रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन, एंड मैं बताने से बेटर है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं. सो लेट्स गेट इनटू द अकाउंट एंड लेट्स सी वेयर वी स्टैंड एंड see you there. Okay guys, so आज हम लोगों का चैलेंज ऑफिशियली खत्म हो चुका है. As you can see, ये हमारा फंडेड ट्रेडर का बैकएंड है. यहाँ पे हमने 7 days, आज आखिरी 7 day है, बट मैं 6 days पे खत्म कर रहा हूँ because there is going to be some news and I don't want to trade news. As you guys can see, हमारा net account stands at -1% के आसपास, and honestly this is our win rate and loss rate. Honestly guys, I think I'm pretty happy with this because हमने बहुत दिनों बाद, मैंने खुद ट्रेडिंग की थी, मैंने कुछ गलतियां की, एंड आई रियलाइज कि अगर मैं वो गलतियां नहीं करता, दिस थिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग इन अ लॉस, दिस शुड हैव बीन इन एटलीस्ट 2% 3% प्रॉफिट्स, राइट? मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मैंने एग्जैक्टली क्या गलती की एंड व्हाट हैज बीन आवर रिजल्ट. सो बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, दिस इज आवर लास्ट 6-7 days का ट्रेडिंग हिस्ट्री. फर्स्ट डे पे वी मेड $37, देन बैक टू बैक 3 to 4 days we hit losses, and guys finally, as I was saying, since I focus only on trading and not trying to prove something, हमने in the last 3 days we have made about 4% प्रॉफिट, राइट? तो जो हमारा अकाउंट ऑलमोस्ट -5 हो चुका था, मैंने वो पूरा रिकवर कर लिया ऑलमोस्ट. एंड आप लोग यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो अबाउट आवर ट्रेडिंग. यू कैन सी द ग्राफ ऑफ आवर होल ट्रेडिंग जर्नी. वी जस्ट टुक अ नोज डाइव, पूरा हम ऑलमोस्ट टॉप आउट होने वाले थे, हम लूज करने वाले थे अकाउंट, बट देन स्लोली एंड सडनली यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ली विच वाज आवर फर्स्ट विनिंग ट्रेड. देन ऑब्वियसली सैटरडे संडे आया था, तो नो ट्रेडिंग देयर, एंड देन फाइनली नाउ वी आर ऑलमोस्ट, वी हैव रिकवर्ड द अकाउंट. नाउ व्हाट नेक्स्ट, राइट? एंड व्हाट हैज बीन माय लर्निंग आउट ऑफ दिस होल
whole thing and what can you guys learn. So guys, जो पहली चीज मैं आप सबसे ज्यादा डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि स्टिक टू योर ट्रेडिंग रूल्स. जो हमने सबसे बड़ी गलती की वो यही थी कि हमने यहाँ पे ओवरसाइज किया. पहली बात तो हमने अपना रूल के साथ हमने फॉलो नहीं किया. हमारे रूल जो थे ऑफ टेकिंग ओनली वन ट्रेड डे एंड सेकंड ओनली वन पेयर. मैंने ज्यादा कोशिश की कि मैं यूरो यूएसडी पे भी ट्रेड ले लूं, जीजे पे भी ट्रेड ले लूं एक ही दिन पे, which was not good, right? You should always stick to one pair. You should always stick to one time frame. You should also stick to one timing of the market, and you should always stick to your strategy. चाहे आपको ट्रेड मिले ना मिले, right? Don't mess around with your own rules. I think हमने यहाँ पे अगर ये जो हमने देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने पहले दिन पे बिना में 2 ट्रेड्स ली, right? तो हमारे पहले दिन पे 1% प्रॉफिट हो जाता. हमने सेकंड डे पे लॉस लिया, which was like a genuine loss. तो आप ये लॉस मान लो तो मान लो हम लोग 0 पे होते हैं अगेन. थर्ड डे पे गाइज मैंने बिना मतलब में 2 ट्रेड्स लिए, दोनों में मैंने ओवर पोजिशन किया. तो अगर मान लो हम एक ही ट्रेड लेते एंड हम ज्यादा जल्दी घुसते नहीं तो -1% ट्रेड होती, ठीक है. एंड देन उसके नेक्स्ट 3 डेज पे हमने 4% प्रॉफिट किया. तो अभी हमारा अकाउंट होता राइट नाउ आवर अकाउंट शुड हैव बीन सिटिंग एट +3% प्रॉफिट्स अप्रोक्सीमेटली, राइट. एंड +3% प्रॉफिट्स गाइज फॉर यू नो इफ यू थिंक अबाउट कि इसमें +3% कितना होता, अभी हमारा टोटल नेट प्रॉफिट ऑन दिस अकाउंट वुड हैव बीन 10,000 रुपीज, राइट, विच इज वेरी वेरी गुड. अगर आप हर महीने 10,000 रुपए कमा पा रहे हो, नहीं तो बहुत छोटा अकाउंट हमने लिया था, दैट इज वेरी वेरी गुड इनकम बिकॉज दैट कैन फ्यूल यू बाइंग बिगर अकाउंट्स. एंड 40,000 तो यार बहुत सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की भी सैलरी नहीं होती व्हेन दे स्टार्ट आउट, राइट. सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मैंने जितना अभी देखा है फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट यू शुड ऑलवेज स्टिक टू योर ट्रेडिंग रूल्स, स्टिक टू योर प्लान. जैसा हमारा डिस्कशन हुआ विद कुणाल, राइट, कि इट टेक्स टाइम फॉर यू टू बिकम प्रॉफिटेबल. यू नो, जस्ट फॉलो द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड दैट विल एंड अप you becoming, you know, a successful trader in the long run, okay? And guys, again, जैसे मैं and guys एक और चीज़ आप जरूर ध्यान रखना. I've met a lot of people very recently and you know even throughout history of. So guys, also एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए. This skill, investing, trading is a skill which will benefit you for the longest of time. I know I met somebody today itself and वो 30 years से invest कर रहे हैं, उनका portfolio 2000% up है. मतलब basically उनका money जो है 20 times हो चुका है. So अगर 1 करोड़ डाला है मार्केट में तो उनका वो 1 करोड़ 20 करोड़ हो चुका है. That is the power of learning how to trade and invest and learning the process, sticking to the process for a very long time, right? मैं अभी एक एग्जांपल, जैसे मैंने और मेरे दोस्त कुणाल ने जब हमने वो जूम कॉल ली थी, you know, we talked about how so many influencers have flipped their money. People like Iman Gadzi, you know, people like Luke Belma, they have all flipped their money in the stock market with investing, with trading, right? So guys, I hope you enjoyed this live trading session. ये series खत्म नहीं हुई है. What I'll do is in the next video which we make or the next video in this series, we will take a live account जहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं रियल अकाउंट पे पैसे बना रहा हूँ, राइट. हम लोग रियल टाइम में प्रॉफिट्स विड्रॉ करेंगे, हम लोग रियल टाइम पे प्रॉफिट्स को एंजॉय करेंगे. इस वाले वीडियो में obviously we couldn't get you know a profit or a loss, so you know I'll accept it, you know, but yes, definitely guys, do subscribe. अगर आपको मेरे notes चाहिए, if you need my notes, you need my strategy, you need the reference of Kunal, right, so that he can teach you some stuff, let me know in the comment section. What you can do is subscribe to the channel, follow me on Instagram, वहाँ पे आप मुझे DM भेजो, मैं सारे resources आपके साथ share कर दूंगा. And I'll also share the Telegram group of Kunal where he does daily trading and you can learn from him there as well. So I hope guys you enjoy this video. I hope you could take some value out of this. I hope you stick to trading, you stick to investing for the long term, and I will see you in the next video. Bye bye.